ওকে, এবারে কোনো সলিউশনকে খুব ডাইলিউট হতে হবে। সলিউশন যদি খুব ডাইলিউট হয় তার মানে কি সলভেন্ট অনেক বেশি, তার রেসপেক্টে সলিউট অনেক কম। এটা একটা ফার্স্ট কেস। সেকেন্ড কেস হচ্ছে কি হেনরিস ল কাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল? যে সলিউট গুলো খুব কম সলিউবল, মানে পার্শিয়ালি সলিউবল বা লেস সলিউবল। লেস সলিউবল কারা কারা আছে, অর স্পেয়ারিংলি সলিউবল কারা কারা আছে? নাইট্রোজেন গ্যাস, অক্সিজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন গ্যাস, হিলিয়াম, এরা হচ্ছে জলে লেস সলিউবল। এই গ্যাসগুলোর জন্য যদি আমি প্রেসার বাড়াই তাহলে মোল ফ্র্যাকশন বা সলিবিলিটি বাড়বে। যদি আমরা এই গ্যাসগুলোকে না নিই, নিয়ে যদি আমি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিই, আমি অ্যামোনিয়া গ্যাস নিই, আমি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নিই যাদের সলিবিলিটি অনেক বেশি, তাদের জন্য কি হবে? এই লটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না। কেন? প্রেসার বাড়ালে তাদের সলিবিলিটি অনেক বেশি বেড়ে যাবে, অনেক বেশি বেড়ে যাবে। এবার হেনরিস ল, রাউলস ল অ্যাপ্লিকেবলই হচ্ছে কি ডাইলিউট সলিউশনের জন্য। তাহলে ডাইলিউট সলিউশনে অবভিয়াসলি সলিউটটা কম থাকবে। যদি আমি CO2 নিই তাহলে তো হচ্ছে সলিবিলিটি বেশি, তাহলে তো অ্যামাউন্টটা তো অনেক বেশি থাকবে। আমি যদি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নিই তাহলে ওর তো অ্যামাউন্ট কম থাকা উচিত, কিন্তু ও তো বেশি আছে। অ্যামোনিয়া নিই, তাহলে এই তিনটে গ্যাস বা সালফার ডাই অক্সাইড নিই যাদের সলিবিলিটি অনেক বেশি, তাহলে তাদের জন্য এই রুলটা অ্যাপ্লিকেবল না। এই রুলটা তাহলে এই জন্যই বলছি রাউলস ল ইজ আ স্পেশাল কেস অফ হেনরিস ল বিকজ it is only applicable for dilute solution and it is applicable for the solution where the solute is sparingly soluble. It means इसका solubility कितना होगा? 1 to 9% होगा, और इसमें जो solute हम यूज करेंगे उसका solubility बहुत ही कम, so higher solubility solute हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा सॉल्यूट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसका सॉल्युबिलिटी कम है? हाइड्रोजन गैस ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो, हीलियम गैस ले लो। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुम लोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तुम लोगे, एमोनिया गैस लोगे जिसका सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाओगे तो इसका सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो सॉल्यूशन तो डाइल्यूट नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका पहले हमने जो बोला था उसका कॉन्टिन्यूएशन हमने कितने तक किया था? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? थर्मोडायनेमिक रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक रिलेशन यहाँ पे लिखेंगे क्या? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट Kb is characteristics, molar elevation constant Kb is characteristics of a particular solvent and can be calculated from the thermodynamic relationship particular solvent and can be calculated from the thermodynamical relationship তো লিখতে পারি কি আমরা? কোন দ্রাবকের ক্ষেত্রে মোলাল উন্নয়ন ধ্রুবক এর মান নির্দিষ্ট এবং যাহা নিম্নলিখিত संपर्क द्वारा निर्णय करा जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे जो रिलेशनशिप वो हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे Kb इक्वल टू Kb, नेक्स्ट पैराग्राफ में Kb के सबस्क्रिप्ट B इक्वल टू कैपिटल R Tb T सबस्क्रिप्ट B उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1000 into LV, L सबस्क्रिप्ट V, L सबस्क्रिप्ट में V, पास में एक थर्ड ब्रैकेट देके लिखेंगे वेयर R is equal to मोलर गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू है कितना कैलोरी में 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इसका और एक वैल्यू है, ये तो कैलोरी सिस्टम में वैल्यू हो गया, SI सिस्टम में इसका वैल्यू है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, टीबी हमको मालूम है, टीबी क्या है, टीबी लिखेंगे टी सबस्क्रिप्ट बी, टी सबस्क्रिप्ट बी क्या लिखेंगे, टी सबस्क्रिप्ट बी होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉरी टीबी हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। और एल सबस्क्रिप्ट बी क्या है, एल सबस्क्रिप्ट बी है क्या, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization of pure solvent in calorie per gram। ক্যালোরি পার গ্রাম এককে বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পীভবনের লিনটা ইকুয়াল टू डेल एच सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे वेपर, देन फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके इसका यूनिट लिखेंगे, कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, डेल एच वेपर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, हाँ कैलोरी पर मोल मोल इनवर्स वो एक ही है, अभी डेल एच वेपर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे क्या सॉल्वेंट, कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे क्या सॉल्वेंट लिखेंगे। तो कैपिटल एम सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम सॉल्वेंट मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल एम क्या हो गया सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, केबी जो वैल्यू है ना, कोई एक सॉल्वेंट का केबी का वैल्यू तुम लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा। एंड हमारे पास क्या है, का वैल्यू फॉर वाटर, केबी फॉर वाटर, इसका वैल्यू हो गया, हाँ आ जाओ आ जाओ, वैल्यू फॉर वाटर कितना है 0.515, केबी फॉर वाटर 0.515 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम में क्या होता है एग्जाम पे टाइम में, कुछ टाइम में केबी का वैल्यू वाटर के लिए नहीं मेंशन किया होता है, गिवन नहीं है, तो याद रखना पड़ेगा, इसीलिए इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम चले आएंगे एक न्यूमेरिकल करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस करके। लिखो न्यूमेरिकल लिखो 0.15, क्वेश्चन ब्लैक में लिखो, ब्लैक है ना, 0.15 gram of a solvent dissolved in 0.15 gram of a substance, 0.15 gram of a substance dissolved in 15 gram of solvent
boiled at a temperature, dissolved in 15 gram of solvent, boiled at a temperature higher by 0.216 degrees centigrade, 216 degrees centigrade, 0.216 degrees centigrade than that of the pure solvent. Full stop. What is the molecular weight of the substance? Given Kb for solvent 2.16 Kelvin kg mole inverse. अभी देखो बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम में केवी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, केवी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो केबी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, केबी है 2.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी देखो सॉल्वेंट सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है, सॉल्यूट कौन सा है, WB का अमाउंट कितना है 0.15 ग्राम, ठीक है। अभी सॉल्वेंट का अमाउंट जो WA वो भी दिया हुआ है 15 ग्राम, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला है क्या, वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट हमको मालूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन, टेम्परेचर कितना बढ़ गया, टेम्परेचर 0.216 डिग्री बढ़ गया, इसका मतलब एलिवेशन कितना हुआ, एलिवेशन कितना टेम्परेचर बढ़ा 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टीबी मतलब क्या है, डेल्टा टीबी मतलब टीबी मतलब सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अभी डेल्टा टीबी 0.216 दिया हुआ है, लिखो ना, बैठे हो क्यों। अभी इस टीबी का वैल्यू हमको निकालना है, टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेल्टा टीबी में हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो टीबी का वैल्यू निकालना जरूरी यहाँ पे नहीं है, बट जो हमारा जो रिलेशन है वो लिखना भी यहाँ पे जरूरी है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमको मालूम है क्या, डेल्टा टीबी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। एम क्या है, एम मोलालिटी है, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है केबी इंटू मोलालिटी मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू गिवन मास ऑफ ये हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, W है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा,
ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू जो है हमको बिठाना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना है वो बिठाएंगे 0.216 इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.15 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमको निकालना है एमबी। सॉल्वेंट का कितना मास है 15 ग्राम। केजी करने के लिए 1000 से हम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी एमबी हमको निकालना है। एमबी 1500 क्यूब, 15 ऊपर में 1000 है। अभी यहाँ पे हमको एमबी निकालना है। एमबी इक्वल टू हो जाएगा क्या 0.15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.216 इंटू 15। अभी यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट काटोगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट काटोगे ऊपर में 1000 चला जाएगा। यहाँ पे 2 0 काटो, यहाँ पे 2 0 काटो, यहाँ पे 5 से काटो तो 3 मिलेगा, यहाँ पे 5 से काटोगे तो 2 मिलेगा, 2 हो गया। यहाँ पे 3 है, 3 से अभी काटोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है 5 इंटू 1000 इंटू 2 और नीचे क्या है 216। डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे। तो 5000 इंटू 2 मतलब 10,000। 10,000 से 216 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केबी का वैल्यू हमने नहीं बिठाया, हमने कैलकुलेशन में गलती कर दिया। जो यहाँ पे केबी का जो वैल्यू है हमने वो नहीं बिठाया था, तो केबी का वैल्यू हमको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, केबी का वैल्यू हमको बिठाना पड़ेगा। तो फिर से लिखते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब एम बी हमको निकालना है। एम बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो अभी के बी का वैल्यू कितना है, के बी का वैल्यू तो एम बी इक्वल टू के बी हो गया कितना, के बी का वैल्यू है 2.16 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 0.15 into 1000 divided by molecular mass of solvent, given mass of solvent 15 ग्राम है और डेल्टा टीबी है 0.216 और ये हो गया 15। तो यहाँ पे ये पॉइंट को काटोगे नीचे 100 चला आएगा। तुम इस पॉइंट को काटोगे तो ऊपर में 1000 चला जाएगा। इसको काटोगे तो नीचे 100 चला आएगा। तो यहाँ पे 2 0 काटो, यहाँ पे 2 0 काटो, यहाँ पे 1 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 0 काटो। ये 216 कट जाएगा, ये 216 कट जाएगा, यहाँ पे 15 कट जाएगा, यहाँ पे 15 कट जाएगा। ऊपर में क्या रहेगा 100। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 100। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास एम बी हो गया कितना 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे, वो थोड़ा सा कॉपी कर लेना।
दूसरा मॉलिक्यूल को कॉपी करो, L subscript B. The rise in boiling point of a solution, the rise in boiling point of a solution containing 1.8 gram glucose in 1000 gram of solvent, in 1000 gram of a solvent is 0.1 degree centigrade. 100 গ্রাম দ্রাবকে উপস্থিত 1.8 গ্রাম গ্লুকোজের জলীয় দ্রবণের স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন 0.1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। Calculate the molar elevation constant of the liquid. প্রদত্ত তরলটির মোলাল উন্নয়ন ধ্রুবকের মান নির্ণয় করো। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट केबी, केबी मतलब कृष्णेंदु भाई नहीं है, केबी मतलब मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। केस सबस्क्रिप्ट में बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो डेल्टा टीवी हमारे पास दिया हुआ है, डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको निकालना है केवी, यहाँ पे मोलालिटी को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको डेल्टा टीवी का जो फॉर्मूला है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे वो फॉर्मूला हमको कॉम्प्लीटली यहाँ पे अभी लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो जाता है क्या, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम, ठीक है। अभी यहाँ पे केबी का वैल्यू हमको निकालना है, तो केबी इक्वल टू हो जाएगा क्या, डेल्टा टीवी। अच्छा फिर अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी, एम मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय molecular mass of solute into given mass of solvent in ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी डेल्टा टीबी तो हमको मालूम है 0.1, केबी हमको निकालना है, तो डब्ल्यू बी मतलब सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है 1.8 ग्राम। अभी ग्लूकोज C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट का अमाउंट दिया हुआ है 100 ग्राम। अभी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 2 0, यहाँ पे 2 0 कट गया,
तो ऊपर में रह जाता है क्या 10, और ये पॉइंट को काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो ये इसको काटेंगे तो नीचे 10 चला आएगा, तो हो जाता है कितना, तो KB/10, तो KB कितना हो जाता है, तो KB हो जाता है, तो KB हो जाता है कितना 0.1 इंटू 10 मतलब 1, ठीक है 1.0 हम लिख सकते हैं, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये हो गया हमारा काम, ठीक है ना। अभी हम कंटेंट में चले आएंगे, क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में चले आएंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखो, हेडिंग दे दो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर दो ना, स्पेसिफिक नंबर दो। पहले हमने क्या किया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किया, फिर हमने क्या किया, लोअर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड जो आ रहा है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम, इसका और एक टर्म है, इसका नाम टर्म है क्या, क्रायोस्कोपी, CRYOSCOPY, क्रायोस्कोपी, CRYOSCOPY, क्रायोस्कोपी। Freezing point of a liquid is that temperature. Freezing point of a liquid is that temperature at which liquid and its solid state, liquid and its solid state, the freezing point of a liquid is that temperature at which liquid and its solid state exist in equilibrium with each other. কোনো তরলের হিমাঙ্ক বলতে বোঝায় সেই তাপমাত্রা যেখানে তরল এবং কঠিন পদার্থ একে অপরের সাথে সাম্যাবস্থা উপস্থিত থাকে। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, the freezing point of a liquid is the temperature at which the liquid and its solid state exist in equilibrium with each other. ठीक है, इसका और भी एक तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिख लो फिर मैं बता दूं। ইকুইলিব্রিয়াম উইথ ইচ আদার, তাহলে হিমাঙ্ক হচ্ছে সেই তাপমাত্রা, কোন তরলের হিমাঙ্ক বলতে বোঝায় সেই তাপমাত্রাকে যেই তাপমাত্রায় তরল এবং কঠিন একে অপরের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে। इसका मतलब क्या होता है, जिस टेम्परेचर में सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा वही टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड कहेंगे। मतलब वो टेम्परेचर में वो लिक्विड फ्रीज करके सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना। इसका और एक भी डेफिनेशन है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो, इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the liquid and the solid states, the liquid and the solid states of a substance have the same vapor pressure and the solid states of a substance have the same vapor pressure. কোনো পদার্থের হিমাঙ্ক বলতে বোঝায় সেই তাপমাত্রাকে যে তাপমাত্রায় তরল এবং তার কঠিন অবস্থা উভয়েরই বাষ্পচাপ সমান। তো দেখো
हमने बोला का पहले जो टेम्परेचर में सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा उसको भी हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कह सकते हैं, और जो टेम्परेचर में सॉलिड जितना वेपर फॉर्म करेगा तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और वाइस वर्सा लिक्विड जो वेपर प्रेशर तैयार करेगा और लिक्विड जब सॉलिड हो जाएगा उसका जो वेपर होगा उसका जो प्रेशर आएगा, तो दोनों का प्रेशर जब सेम हो जाएगा लिक्विड एंड इट सॉलिड स्टेट, तब उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहेंगे। इसके सपोर्टिंग में हमारे पास एक डायग्राम है, एक ग्राफ है, एक ग्राफ हमको ड्रॉ करना चाहिए अभी, तो अभी हम एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो इसका y एक्सिस क्या इंडिकेट करता है? y एक्सिस इंडिकेट करता है वेपर प्रेशर, ठीक है। x एक्सिस क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर केल्विन में, इन केल्विन। तो ये जो पहला वाला जो पॉइंट है ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया TF, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया TF नॉट, ये वाला पॉइंट ये हो गया। तो ये हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सॉल्यूशन है और ऊपर में लिक्विड सॉल्वेंट है। तो ये वाला हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, ऊपर में लिक्विड सॉल्वेंट है। अभी देखो TF नॉट टेम्परेचर में, TF नॉट टेम्परेचर में, तो ये वेपर प्रेशर TF नॉट टेम्परेचर में ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो देखो TF नॉट टेम्परेचर में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं है। लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है। सो कौन सा वाला टेम्परेचर में दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है? TF, देखो वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर में देखो दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट में जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन रीच करेगा तो दोनों ही सॉलिड स्टेट में रहेगा, और हम कह सकते हैं क्या इस पॉइंट में, इस टेम्परेचर में लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जितना होगा और सॉलिड का वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा, कम नहीं, दोनों का ही सेम रहेगा। हमने बोला क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसको
कौन सा वाला टेम्परेचर को कहेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कौन सा वाला टेम्परेचर को कहेंगे, जिस टेम्परेचर में लिक्विड एंड इट सॉलिड इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। तो इस टेम्परेचर में डिक्रीज करके दोनों का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर में सेम हो गया। और उल्टा हम ये भी कह सकते, उल्टा हम ये भी कह सकते, देखो ये टेम्परेचर में देखो, ये वाला टेम्परेचर, दूसरा देखो ये वाला टेम्परेचर में देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है यहाँ पे। हाँ, तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम नहीं है। अभी टेम्परेचर टीएफ से जब टीएफ नॉट में हम जाते हैं तब क्या हो गया, टेम्परेचर हमने क्या किया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया। तो इसका उल्टा वर्जन देखो, टीएफ नॉट जो टेम्परेचर है उसमें लिक्विड और उसका सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों का सेम नहीं है। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सपोज 0 डिग्री में था, इसको हमने डिक्रीज करके -5 डिग्री कर दिया। तो सपोज ये होगा -5 डिग्री। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज किया तब हम देख रहे क्या, लिक्विड और उसका सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, और एक बात है दोनों का वेपर प्रेशर सेम रहेगा। नो पहले टीएफ नॉट टेम्परेचर में तो अलग था, जब टीएफ में हम चले आए तब क्या हुआ, देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे है और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे, दोनों यहाँ पे चला आ रहा है। पहले ये लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीज करके इसका वेपर प्रेशर है ये होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये हो गया, ठीक है। ऊपर वाला लिक्विड सॉल्वेंट है और नीचे वाला सॉल्यूशन है। पहला वाला जो टेम्परेचर हमने लिखा वो टीएफ नॉट, दूसरा वाला टीएफ, दूसरा वाला टेम्परेचर लिखा हमने टीएफ नॉट, पास में ब्रैकेट में नीचे लिखना नीचे। तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया ये, तो कौन सा वाला टेम्परेचर ज्यादा है, टीएफ नॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टीएफ नॉट ग्रेटर देन टीएफ। तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ। तो लिखेंगे क्या, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसको हमने पहले लिखा प्योर सॉल्वेंट, तो हम नीचे लिखेंगे क्या, where TF naught is equal to freezing point of pure solvent, लिखो where TF naught is equal to freezing point of pure solvent, TF is equal to freezing point of solution, TF is equal to freezing point of solution क्या, यस। अभी हम लिखेंगे क्या, डेल्टा TF that is depression in freezing point is a colligative property in the next paragraph or next slide. Therefore, delta TF directly proportional to small m. Delta TF is directly proportional to small m. Molality small m. Small m is equal to molality. अब ये प्रोपोर्शनल साइंस को हटाने के लिए हमको कांस्टेंट चाहिए,
तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। पास में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, के एफ इज इक्वल टू a proportional constant known as k is equal to a proportional constant known as, पास में ब्रैकेट kf into m, डेल्टा tf is equal to kf into small m, पास में थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे kf is equal to a proportional constant known as molar depression constant, molar depression constant और cryoscopic constant, CRYOSCOIP, cryoscopic constant। k is equal to হচ্ছে মোলাল হিমাঙ্কের অবনমন ধ্রুবক অথবা क्रायोस्कोपिक ध्रुवक। ठीक है, अभी एम को हम थोड़ा सा अभी यहाँ पे हेडिंग देंगे क्या, डिटर्मिनेशन। हेडिंग देंगे सब हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ molecular weight of solute from depression in freezing point। यहाँ पे हेडिंग देंगे क्या, determination of molecular mass of solute from depression in freezing point। determination of molecular mass of solute from depression in freezing point। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। अभी स्मॉल एम को फर्दर हम, इसका फॉर्मूला मालूम है, मोलालिटी मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये भी ग्राम में ही है, अभी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने, सॉल्वेंट का मास ग्राम में हो, केजी को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। तो अभी हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको चाहिए, डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, डब्ल्यू है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर और एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू KF into WB into 1000 divided by MB, sorry, delta TF into WA in ग्राम। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब केएफ का वैल्यू मालूम होगा, डब्ल्यूबी का वैल्यू मालूम होगा, डेल्टा टीएफ का वैल्यू मालूम होगा, डब्ल्यूए का वैल्यू मालूम होगा, तब हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नीचे हमको लिखना पड़ेगा क्या, केएफ, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए केएफ का एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा, केएफ फॉर वाटर। नेक्स्ट इसको एक बॉक्स में लिखो, जो अभी जो एक्सप्रेशन हमने जो लिखा है ना, उसको एक बॉक्स में लिखो। बॉक्स में लिखने के बाद अभी नीचे लिखो केएफ फॉर वाटर, नहीं बॉक्स के बाहर, केएफ फॉर वाटर इक्वल टू 1.86। ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, केएफ फॉर वाटर इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। KF for
K subscript F for water equal to 1.86 Kelvin kg mole inverse. ठीक है, अभी एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन में आ रहे हैं. ये हेडिंग देना, thermodynamic relation of depression in freezing point. Thermodynamic heading दो, thermodynamic लिखो, thermodynamic relation of depression in freezing point. और बेटर होगा लिखना पड़ेगा thermodynamic relation of cryoscopic constant. करेक्शन कर लो, thermodynamic relation of cryoscopic constant with thermodynamic relationship of cryoscopic constant with freezing point of solution. इसको अंडरलाइन कर लो. तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है K सबस्क्रिप्ट F इक्वल टू R T F स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 L सबस्क्रिप्ट F. ठीक है, जहां पे लिखेंगे वेयर आर टी एफ स्क्वायर, टी एफ का स्क्वायर, ओनली टी एफ का माने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का स्क्वायर. पर यहाँ पे टी एफ हमने कंसीडर किया क्या? यहाँ पे टी एफ, पहले वाला एक्सप्रेशन में नहीं, ओनली यहाँ पे आर इज इक्वल टू मोलर गैस कांस्टेंट. आर इज इक्वल टू मोलर गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू है कितना? 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. और इसका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, मोल इनवर्स है. और यहाँ पे ओनली यहाँ इस एक्सप्रेशन के लिए, ओनली इस एक्सप्रेशन के लिए TF is equal to freezing point of solvent. Usually solvent का freezing point हम TF नॉट बोलते हैं, but only this relations. अच्छा, TF नॉट स्क्वायर कर दो ना, तो भी तभी तक झमेला मिट जाएगा ना. इसको TF नॉट कर दो, TF नॉट स्क्वायर. कंफ्यूजन करने का कोई जरूरत नहीं. R TF नॉट स्क्वायर where TF नॉट is equal to freezing point of pure solvent. ठीक है, हाँ. अभी L और LV क्या है? LV latent, sorry, LF, sorry, latent heat of fusion, latent heat of fusion in calorie per gram. LF is equal to হচ্ছে হিমাঙ্কের বা গলনাঙ্কের লিনতাপ, হিমাঙ্কের বা গলনাঙ্কের লিনতাপ कैलोरी पर ग्राम है, कैलोरी पर ग्राम. अभी इसके बाद एक न्यूमेरिकल में चले आएंगे. फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल लिखो, हेडिंग दे दो न्यूमेरिकल. गाणितिक समस्या, बांग्ला के गाणितिक समस्या बोले, इंग्लिश में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहते हैं इसको. आज इतना ब्लड खींचा ना, दो इतना ब्लड खींचा, यहाँ से बहुत दर्द हुआ मेरे पास.
लिखो if freezing point of a solution numerical, if freezing point of a solution prepared from 1.25 gram of a non-electrolyte and 20 gram of water is 271.9 Kelvin, then calculate the molecular mass of solute. 20 গ্রাম জলে উপস্থিত তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ 1.2 গ্রাম থাকলে দ্রবণের হিমাঙ্ক হয় 271.9 কেলভিন। फुल स्टॉप। द्रव्येर आणविक भर निर्णय करो। अभी जो जो वैल्यू हमको दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। पहले क्या दिया हुआ है? पहले सॉल्यूट का मास दिया हुआ है WB 1.25 ग्राम। इसके बाद सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है WA 20 ग्राम। इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया हुआ है TF 271.9 केल्विन। अभी देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में केएफ का वैल्यू किंतु दिया नहीं हुआ है, तो केएफ का वैल्यू फॉर वाटर हमको याद रखना पड़ेगा। कुछ देर पहले हमने लिखा था केएफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स फॉर वाटर। तो अभी सिर्फ हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला में डायरेक्ट बिठा देंगे। MB is equal to KF into WB into 100 1000 into MB, सॉरी MB नहीं, MB नहीं, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TF into WA। अभी डेल्टा TF हमको तो मालूम नहीं हो, तो डिटरमाइन करना पड़ेगा। TF हमको मालूम है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में राइट साइड में रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेना, ठीक है। राइट साइड में कैलकुलेशन कर लेना। क्या डेल्टा TF इक्वल टू हो जाता है क्या? TF नॉट माइनस TF। तो TF नॉट मतलब कितना? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, मतलब 273 केल्विन। तो डेल्टा TF हो जाएगा कितना? तो डेल्टा TF हो जाएगा कितना? ये ब्रैकेट में रफ नहीं करना। डेल्टा TF हो जाएगा कितना? TF नॉट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, और TF मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 271.9, तो हो जाएगा कितना? 1.1 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा TF का वैल्यू 1.1 केल्विन हमको निकल गया। तो अभी वैल्यू सब बिठा देंगे। तो KF का वैल्यू कितना है? KF का वैल्यू है 1.86
सॉल्यूट का मास है 1.25 ग्राम into 1000 divided by डेल्टा टीएफ वैल्यू 1.1 निकल गया। सॉल्वेंट का मास 20 हो गया। तो यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। इस पॉइंट को काटेंगे नीचे 100, इस पॉइंट को काटेंगे ऊपर 10। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। तो ऊपर 5 है, नीचे 11 है, और ये इसको काटेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है 186 इंटू 125, नीचे है 11 इंटू 20। ठीक है, 186 इंटू 25, 11 इंटू कितना होगा, 186 इंटू 125 कितना होगा मेगा बोलो। हमको कैलकुलेट करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा, वो होगा कितना, 105.86 मोल पर केजी। ये हो गया मोलालिटी। मोलालिटी मतलब एक मोल में इतना केजी है, एक मोल में इतना केजी है। और इतना मोल में 1 केजी है। तो इसका मोलालिटी हमने निकाल दिया। इंटू 125 डिवाइडेड बाई 11 इंटू कितना था ना 20। हाँ 20 तो कट गया था, 20 तो कट गया था ना। अभी यहाँ पे तो केजी है, यहाँ पे ग्राम है, ग्राम की तो केजी, तो ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा केजी पर मोल। हाँ बोलो, केजी पर मोल कितना कितना होता है, 11625 नहीं 105.8। करेक्शन कर लो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो। 20 তো আগেই কেটে গেছে, উপরে তো এখানে দুটো 100 নিচে আসবে না, তো 1000 100 কেটে যাচ্ছে। आंसर 105.86 ही आएगा। घर पे जाके देख लेना यही आया है क्या नहीं आया। ठीक है, अभी दूसरा न्यूमेरिकल में आते हैं। देखो, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। अभी देखो मंडे में सिर्फ हम न्यूमेरिकली कराएंगे। जो वैरायटी टाइप का न्यूमेरिकल मंडे में सिर्फ न्यूमेरिकली कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम आता है। मंडे में सिर्फ न्यूमेरिकली कराएंगे। ठीक है, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, लिखो प्रॉब्लम लिखो। मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर water is 1.86 degree centigrade. What is freezing point of what is 1.86 degree centigrade मतलब के दिया हुआ है। What is freezing point of 0.05 मोलाल सॉल्यूशन। मोलाल मतलब मोल पर केजी। ठीक है, solution of a non-electrolyte in water. What is freezing point of 0.05 molar solution of a non-electrolyte in water? ये न्यूमेरिकल तुम लोग खुद करो।
अभी यहाँ पे देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ नॉट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अभी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 273, टी एफ हमको निकालना है, के एफ दिया हुआ है 1.86, एम भी दिया हुआ है कितना, एम दिया हुआ है 0.05। तो यहाँ पे माइनस टी एफ इक्वल टू 1.86 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई करके कितना आता है, कितना 5 शून्य हाते 3, 5 40, 43 3 हाते 4 9 9.3। 0.093 माइनस 273। हाँ अभी देखो तो टीएफ का वैल्यू कितना आएगा, तो ये 273 मतलब तो अभी अभी देखो कि अभी डिग्री सेंटीग्रेड में टीएफ को निकालना है तो 273 को हम 0 पकड़ लेंगे। हाँ तो टीएफ आ जाएगा कितना, सपोज ये हो गया 273 का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 0.093 माइनस 0, ये माइनस टीएफ के लिए, तो टीएफ कितना हो जाएगा, टीएफ हो जाएगा माइनस 0.093 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ।